देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ପୁଣି ବିଜେପି, ମେଘାଳୟରେ ଝୁଲା ବିଧାନସଭା। ବିଜେପି ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ତ୍ରିପୁରା ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରାରେ ବିଜେପି ଅଳ୍ପକେ ବାଜିମାତ କରିଥିବା ବେଳେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଦଳ ଏନ୍ଡିପିପି ସହ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହୋଇଛି। ତେବେ ମେଘାଳୟବାସୀ କୌଣସି ଦଳକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଝୁଲା ବିଧାନସଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 2, 8,000 ସାଇକେଲ ପାଇଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା। କାଲି ଲୋକସଭା ଭବନସ୍ଥିତ କନଭେନସନ ହଲରେ ସାଇକେଲ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା 8,000 ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ଆହାର କର୍ମୀ, ଜଳ ସାଥୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ଆଦି ସମସ୍ତେ ସାଇକେଲ ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାମାନେ ଯେପରି ସୁବିଧାରେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାଇକେଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ମାମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାମାନେ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 3, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ? ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ହିଁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟିର ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ KM ଯୋଶେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ 5 ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ହିଁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ନଚେତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନମ୍ବର 4, ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିଟି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ବା DLED ତଥା ସିଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ହେବ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଟି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କିଭଳି ସିଟି ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା, ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବା CBT ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୋଟ 90ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ମାତ୍ର 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 50%ରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, 1901 ଏବଂ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 123 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 6, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ G20 ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିଲାନି ଏକମତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା G20 ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ପଡ଼ିଛି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ G20 ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସହମତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମତଭେଦ ଥିଲା ଓ ବୈଠକରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁ G20 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକକୁ ନେଇ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କାଲି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ S ଜୟଶଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। G20 ବୈଠକରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଦେଶ ସହମତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ମତ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ମତକୁ ଶୁଣାଯିବା ଦରକାର। ବୈଠକରେ ସବୁ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଏ ବର୍ଷ 200 ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା IAS କୋଚିଂ। ଏ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 200 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା IAS କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ SQIS ଏକାଡେମୀକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ ଲାଗି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଆଦାନୀ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲା। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଦାନୀ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
अर्थात सेबी को एहार जांच शेष करी एहार रिपोर्ट 2 मास मध्य दाखल करने को निर्देश देइछंती। सेबी उभय हिंडेनबर्ग रिपोर्ट एवं एथिरे अदानी ग्रुप विरोध में आस्थिबा अभियोग संपर्क में अनुसंधान करुछि। सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ नेतृत्व में गठित होइथिबा बेंच कहिसंती जे नियामक संस्था सेबी एही मामलार अन्य दिग पर अनुसंधान करने उचित। बेंच कहिसंती जे स्टॉक मूल्यर उल्लंघन एवं हेरफेर होइछि कि नहीं सेबी अनुसंधान करने आवश्यक। स्टॉक मार्केटर नियामक प्रणालीर विद्यमान ढांचा को समीक्षा करने पई शीर्ष अदालत एक विशेषज्ञ कमिटी मध्य गठन करिसंती। कमिटीर मुख्य भाव अवसरप्राप्त जस्टिस एम साप्रे को सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति करिसंती। नंबर 9 35 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास कले केन्द्रमंत्री। केन्दुझर जिला घटगां ब्लॉक मुकुंदपुर पाटणा पंचायतर खुंटापड़ार एकलव्य विद्यालयर भूमिपूजन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। प्राय 35 कोटी टंकार यह प्रकल्प को केन्द्र आदिवासी व्यापार जलशक्ति मंत्री विशेष टुडू शिलान्यास करिसंती। एबे ए अंचलर आदिवासी पिलामाने सहरर बड़ बड़ बेसरकारी स्कूल भली अनेक सुविधा पाई परिबे। गरीब कल्याण योजनार यह एक अंशविशेष। एही विद्यालय पिलामानकर हॉस्टेल ठू आरंभ करी समस्त प्रकार उच्चमानर सुविधा सुजोग रहिबो। 18 मास भितर एहार निर्माण काम शेष पई केंद्र सरकार समय धार्य करिसंती। एहार निर्माण दायित्व त्रिवेणी सिविटेक प्राइवेट लिमिटेड हाथ को नहीं बोली जना पड़िछि। नंबर 10 कोर्ट भितर वकिल मानक मोबाइल लैपटॉप व्यवहार अनुमति मिलू कहिले प्रधान विचारपति। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ कहिसंती जे विचारपति माने वकिल मानक कोर्टरूम भितर सेमानक मोबाइल फोन लैपटॉप आदि इलेक्ट्रोनिक गैजेट रे काम करने को अनुमति देवा उचित। या सहित कोर्टरूम रे पर्याप्त फायरवॉल सहित इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने उचित जहाद्वारा यार वास्तव एवं अनुमोदित व्यवहार सुनिश्चित करा जाई परिबो। बुधवार संध्यारे कलिकता हाइकोर्टर प्रशासनिक विभाग एवं विभिन्न ई कार्यक्रम वर्चुअल उद्घाटनी समारोह रे प्रधान विचारपति चंद्रचूड़ कहिसंती जे मोबाइल फोन एवं समाज में सर्वव्यापी होइछि एवं सही समय को मने पकेइले जेतेबेले विभिन्न अदालत रे एहाको निश्चित करा जाइथिला। नंबर 11 विजय उत्सव पाड़िले समस्तଙ୍କୁ बीजेपी विजयर 3 सूत्री कारण कहिले मोदी। उत्तर पूर्व विजय पर दिल्ली स्थित मुख्यालय बीजेपी कर्मी और नेता को संबोधन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विजयोत्सव पालन करी से कर्मी को उत्साहित करिसेंती। गणतंत्र गणतांत्रिक प्रक्रिया पर लोकंक विश्वास रहिथिबा 3 राज्यर निर्वाचन फलाफल दर्शाउछि। उत्तर पूर्व अंचल एबे दिल्ली किंबा दिल ठारू दूर रे नाही बोली मोदी कहिसेंती। एथिसह 3 राज्यर होइथिबा विजयर समस्त श्रेय से स्थानीय बीजेपी कर्मी और नेता माननकु दैछंती। अनेक राजनीतिक विशारद माने बीजेपी विजय पछर कारण समीक्षा करुछंती। एही विजयर कारण हैला त्रिवेणी। प्रथम शक्ति हैला बीजेपी सरकार काम, द्वितीय हैला बीजेपी काम करिवार शैली और तृतीयटी हैला बीजेपी कार्यकर्ता परिश्रम। एही 3 संगम जोगु बीजेपी जीतिछि बोली मोदी कहिसंती। नंबर 12 सनराइज हॉस्पिटल सील बंद रखुथिला बिजू स्वास्थ्य कार्ड। केन्दुझर सहर में थिबा सनराइज हॉस्पिटल नारे आसीछि सांघातिक अभियोग। बीएसकेवाई योजना रे एही हॉस्पिटल अंतर्भुक्त होई नथिले भी रोगी को प्रलोभित करी एडमिट करुछि, परे कार्ड बंद रखी टंका देबाकू बाध्य करुछि। एपरि सांघातिक अभियोग आसीबा परे काली सनराइज हॉस्पिटल को सील करिछि जिला प्रशासन। केवल सेतिक नुहे ई हॉस्पिटल इंचार्ज डाक्तर कहीं नथिबा बेले एठारे थिबा कर्मचारींकर भी स्वास्थ्य सेवा जोगई देबाकू योग्यता नाही। या सत्वे आदिवासी अध्युषित जिले में गढ़ी उठिथिबा ई हॉस्पिटल लोकंक जीवन सह खेलिबाकू पछौ नाही। नंबर 13 एणिकी जेएनयू रे धारणा देले 20,000 टंका फाइन। देशर प्रतिष्ठित तथा चर्चित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रे एणिकी धारणा मना। आंदोलन धारणा विक्षोभ कले गणिबाकू पड़िबो दंड। धारणा देले पिलांकू 20,000 टंका जरिमाना सह एडमिशन मध्य बातिल करा जाई पारे। सेहीपरि हिंसाकांड घटिले 30,000 टंका पर्यंत जरिमाना होई पारे। जेएनयू रे बारंबार विभिन्न प्रसंग को नहीं धारणा आंदोलन करा जाउथिबारु एहाकू रोकिबा पई विश्वविद्यालय प्रशासन एमिति कठोर नियम आनिछंती जाहाकू नहीं विवाद मध्य उपजिछि। कॉलेज रे श्रृंखला एवं अनुशासन एवं छात्र छात्रींकर सठिक आचरण पई विश्वविद्यालय पक्षरु 10 पृष्ठार अनुशासन नियम प्रणयन करा जाइछि। एथिरे विश्वविद्यालय पक्षरु स्थिर होइतिबा नियम को उल्लंघन कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली कुहाଯାଇଛି। नंबर 14 संख्या गरिष्ठता न मिलिबारु समर्थन मागिले मेघालय मुख्यमंत्री। केवल त्रिपुरा किंबा नागालैंड नुहे मेघालय रे मध्य सरकार गठन करिबो बीजेपी। मेघालय रे दल मात्र 3टी आसन जीतिथिले मध्य मुख्यमंत्री कनराड सांगमांको एनपीपी सह मिसी सरकार गठन रे सहायता करिबो। काली मेघालय विधानसभा निर्वाचन में कौनसी दल को सरकार गठन पर स्पष्ट संख्यागरिष्ठता मिली नहीं, किंतु सांगमांको एनपीपी सर्वबृहत दल सह 26टी आसन जीतिछि। मैजिक नंबर ठारू यह 5 कम होइथिबारु सांगमा तांको पुराना सहयोगी बीजेपी रो सहायता लोड़िछंती। से जनादेश पर केंद्रमंत्री अमित शाह को फोन करी सरकार गठन करिबारे सहायता करबाको अनुरोध करिथिले। श्री शाह मध्य काल विलंब न करी बीजेपी समर्थन करिबो बोली कहिछंती। तेबे बीजेपी समर्थन कले मध्य मैजिक नंबर पई एनपीपी आउ 2टी आसन आवश्यक करिवो। ए परिस्थिति रे दल कौन करिवो ताकु नै अड़ुआरे पड़िछि। राज्य रे यूडीपी 11टी आसन जीतिथिबा बेले
कांग्रेस और टीएमसी 5टी लेखाएं स्थान में बाजीमात करिसेंती। तेणु मेघालय राजनीति रे छकपंजा आरंभ हो जाइछि। नंबर 15 15 रे विधानसभा घेरिबे प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षारू ठिका नियुक्ति बातिल करी कनिष्ठ शिक्षक मानक नियमित करने सह शिक्षा सहायकों को 6 और 8 नेशनल इनक्रिमेंट दे मूल चाकरी रे गणना, समस्त प्राथमिक शिक्षकों अविकल केंद्रीय हार रे दरमा प्रदान और नूतन पेंशन व्यवस्था को उच्छेद करी पुराना पेंशन पुनः परिचालन करने को मिलित प्राथमिक शिक्षक संघर पक्षर दाबी कर जदि आसंता 5 तारिख सुधा दाबी पूरण कर न जाए तेबे मार्च 15 रे विधानसभा घेराव कराजिबो बोली महासंघ पक्षर एठारे आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में कहुଯାଇଛି। नंबर 16 महाराष्ट्र उपनिर्वाचन जितिले कांग्रेसर रवींद्र। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन में नैराश्यजनक प्रदर्शन करिथिबा कांग्रेस को महाराष्ट्र उपनिर्वाचन में किछिटा भल खबर मिली। महाराष्ट्रर कसबा आसन पर अनुष्ठित उपनिर्वाचन में कांग्रेसर रवींद्र धांगड़ेकर बाजीमात करिसेंती। से तांको निकटतम प्रतिद्वंदी तथा बीजेपी नेता हेमंत राजस्थानी को प्राय 11,000 खंड भोट व्यवधान रे परास्त करिसेंती। रवींद्र कांग्रेस नेता होइथिबा बेले तांको महाविकास अगाड़ी रे थिबा उद्धव ठाकरे शिवसेना और शरद पवार एनसीपी समर्थन करुथिले। रवींद्र को मोट 73,194 खंड भोट मिलिथिबा बेले हेमंत 62,244 खंड भोट पाइछंती। प्रथम राउंड रे ही रवींद्र लीड रे रहिथिले। शेष रे 20 राउंड गणति परे तांको विजयी घोषणा कर जाइछि। नंबर 17 मयूरभंज गस्तरे 5टी सचिव। पर्यटन स्थली सह ऐतिहासिक स्थली हेब नवीकरण। मयूरभंज जिलार विभिन्न पर्यटन स्थली और ऐतिह्य स्थल झलसिब। खिचिंग, देवकुंड, भीमकुंड आदि प्रमुख पर्यटन स्थलीर नवीकरण हेब। पंडित रघुनाथ मुर्मू समाधि स्थल नुआ रूप पाइब। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे काली तांको सचिव देवकुंड जाइथिले। सांगरे थिले पर्यटन विभाग सचिव सुरेंद्र कुमार। गस्त बेले अधिकारी और स्थानीय लोकंक सह उन्नयन कार्य नहीं आलोचना करिथिले। जिले में विभिन्न पर्यटन स्थलीर विकास लगी आलोचना करी प्रस्ताव देवाको मुख्यमंत्री जिला प्रशासन को निर्देश देइछंती। पांड्यान जसीपुर जाई प्रस्तावित खैरी बंध जलसेचन प्रकल्प स्थान परिदर्शन करिथिले। एही प्रकल्प हेले जसीपुर, सुक्रुड़ी और राउरा ब्लॉक 9,400 हेक्टर जमी जलसेचित होई परिबो। नंबर 18 राहुल गांधी केम्ब्रिज भाषण को नहीं चर्चा। एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी नुआ अवतार को नहीं चर्चा जोर धरी। 52 वर्षीय राहुल फोटो सोशल मीडिया रे बहुल प्रसार होबार लगी। 7 दिनिया लंडन गस्तरे थिबा राहुल केम्ब्रिज बिजनेस स्कूल रे भाषण देइछंती। एठारे से कहिसंती जे आजिकाली भारत अमेरिका परी गणतांत्रिक देश रे उत्पादन ह्रास पाउछि किंतु चाइना रे वृद्धि पाउछि। या द्वारा गण असमता और क्रोध वृद्धि पाउछि जार त्वरित समाधान हेबा आवश्यक। लंडन र केम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे भाषण देवा अवसर रे सारा विश्व रे गणतांत्रिक परिवेश को सुदृढ़ करबा पई नुआ चिंताधारा अपनाइबाकू पड़िबो बोली से कहिसंती। आर्ट ऑफ लिसनिंग शीर्षक उपर आलोचना रे अंशग्रहण करी राहुल कहिथिले जे गणतांत्रिक देशगुड़िकर अधिक उत्पादन और सही देशगुड़िकर उत्पादित द्रव्यगुड़िकर अधिक व्यवहार उपरे आमे गुरुत्व देवा आवश्यक। ए क्षेत्र में आमे नूतन चिंताधारा अपनाइबा उचित। नंबर 19 कहार कटिब टिकेट। बीजेडी करुछि सर्वे, परखुछि लोकंक मूड। साधारण निर्वाचन को दृष्टि रखी राज्यर 3 प्रमुख राजनीतिक दल बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस मध्य छकापंज उष्मता वृद्धि सह विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रम आरंभ होइछि। आउ एसबु भितर गत 23 वर्ष धरी क्षमतासीन बीजेडी राज्यर भोटरंक मूड परखिबाकू एबे राज्य बाहरर संस्था माध्यम सर्वे कार्यक्रम जारी रखिछि। एही सर्वे रिपोर्ट आधार में दल आगामी साधारण निर्वाचन में काहाकू पुणी थरे विधायक और सांसद भाव रिपिट करिबो तथा केउठी नुआ मुह देबो तार निष्पत्ति नेबो बोली सूचना मिलिछि। एबे बालेश्वर जिले में इस सर्वे टीम भोटर तालिका धरी गाँ को गाँ बुली प्राय 21टी प्रश्न माध्यम भोटरंक मूड परखुथिबा जणा पड़िछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार दिल्ली रे एक संस्था एबे ओडिशा रे बीजेडी निमंते सर्वे कार्यक्रम चलैछि। बालेश्वर जिल्लारू एही सर्वे कार्य आरंभ होइछि। नंबर 20 वंदे भारत ट्रेन निर्माण करिबो रूस कंपानी। देशर सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एवं 10टी रूट्रे चलाचल करुवा बेले आगामी दिन में 200टी स्लीपर ट्रेन चलाचल कर 200टी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाचल करने बेले यह 2टी कंपानी निर्माण करेंगे। 200टी ट्रेन मध्य सबुठ कम नीलाम डाकी कंपानी को 120टी ट्रेन और अन्य कंपानी को 80टी ट्रेन निर्माण करने को दिज्व। रेल अधिकारी सूचना मुताबक ट्रेन निर्माण पर 2टी कंपानी को टेंडर माध्यम चयन कर 2टी कंपानी होती रूसर सीजेएससी ट्रांसमा होल्डिंग और रेल विकास निगम लिमिटेड। रूसर कंपानी सबुठारु कम नीलाम डाकिथिला। उभय कंपानीर बिड होउछि 58,000 कोटी टंका। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रे 16टी कोच रहिबो और एई कोच गुड़िक महाराष्ट्रर लाटूर एवं चेन्नईर आईसीएफ रे निर्माण कराजिबो। नंबर 21 2023-24 आर्थिक वर्ष पई कटक रे 587 कोटीर बजेट।
कटक महानगर निगम रे 2023-24 आर्थिक वर्ष लगी आगत होईछि बजेट। चलित वर्ष 587 कोटी 56 लक्ष 57 हजार टंकार बजेट आगत होईछि काउंसिल बैठक में। आसंता 9 तारिख में बजेटर पूर्णांग रूप धार्य कर सरकार को पठाजिबो बोली सूचना देइछन्ति सीएमसी मेयर सुभाष सिंह। काली अनुष्ठित बजेट बैठक में समस्त कॉर्पोरेटर विभिन्न विभाग अधिकारी उपस्थिति रे मेयर कमिशनर बजेट उपस्थापन करथिले। गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष बजेट रे 100 कोटी अधिक व्यय आगत कर जाइछि। गत वर्ष सीएमसी रो बजेट 499 कोटी रहिथिला। चलित बजेट रे स्वास्थ्य आलोकीकरण सौंदर्यीकरण बस्ती विकास ड्रेनेज नवीकरण अड़िया आवर्जना सफा आदि दिग को गुरुत्व दि जाइछि। आसंता 3 दिन में आउ किछि प्रस्ताव आनिले अनुमोदन पई राज्य सरकार को पठाजिबो बोली कहिसंति सीएमसी मेयर। नंबर 22 तीन खଣି लीजधारी को 341 कोटी टंका जरिमाना। ओडिशा सरकार राज्यर 3 खଣି लीजधारी को 341 कोटी टंका जरिमाना करिसंति। जेएसडब्ल्यू स्टील उपरे 298.54 कोटी टंका, पटनायक मिनेराल्स उपरे 37.1 कोटी टंका एवं यजदानी स्टील एंड पावर लिमिटेड उपरे 5.42 कोटी टंकार जरिमाना लागू कर जाइछि। लुहपथरर गुणवत्ता ह्रास करिथिबा अभियोग रे जरिमाना लगैछंति राज्य सरकार। विधायक नवचरण माझी एक अणतारक प्रश्नर उत्तर में विधानसभा इस्पात और खनि मंत्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक यही तथ्य देइछंति। नंबर 23 खलिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह उपरे होइपारे हमला। खलिस्तानी नेता तथा वारिस पंजाब देर मुख्य अमृतपाल सिंह उपरे हमला हेबार आशंका प्रकाश पाइछि। तांको उपरे आक्रमण करने को विभिन्न संगठन योजना करुथुवा गोइंदा विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। गोइंदा विभाग कहिछि जे देशर विरोधी तत्व आक्रमण पई ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिसंति। सेमाने आक्रमण करी आईन श्रृंखला परिस्थिति को बिगाड़िबाको लक्ष्य रखिसंति। गोइंदा विभाग पक्षरु पंजाब पुलिस को ए संपर्क में सूचना दि जाइछि और वारिस पंजाब देर जिला सभापति मानक पक्षरु टंका केउठु आसुछि ता उपरे नजर रखिबाको भी कह जाइछि। बुधवार सुरक्षा एजेंसी संदेह करिथिला अमृतपाल सिंह को पाकिस्तान आईएसआई पांठी जोगाउछि। सोशल मीडिया रे भिंदरनवाले 2.0 भावे तांको चित्रण करबाको चेष्टा कर जाउछि। जर्नल सिंह भिंदरवाले स्वतंत्र सिख देश गठन पई हेउथिबा दाबीरो दृढ़ समर्थक थिले। नंबर 24 हाथरस गणदुष्कर्म मामला मुख्य अभियुक्त दोषी साब्यस्त 3 दोषमुक्त। बहुचर्चित उत्तर प्रदेश हाथरस गणदुष्कर्म पर हत्याकांड मामला रे आसीछि बड़ राय। এই মামলার অভিযুক্ত থিবা 4 জনক মধ্যে 3 জনক उत्तर प्रदेशर कोर्ट दोषमुक्त करिसंति। एथिसह मुख्य अभियुक्त संदीप सिंह एससी एसटी एक्ट अनुसार दोषी साब्यस्त कर जाइछि। इंडियन पेनाल कोडर धारा 304 एवं एससी एसटी आईन अनुसार संदीप दोषी साब्यस्त होइछंति। सेपटे पीड़ितांक परिवार लोके कोर्टंक ए राय रे संतुष्ट नथिबा कहिसंति। एहाको नै सेमाने हाईकोर्टर द्वारस्थ हेबे बोली कहिसंति। 2020 सेप्टेम्बर 14 तारिख रे उत्तर प्रदेशर हाथरस जिला अंतर्गत बुलगडी रे जड़े 19 वर्ष दलित युवती गणदुष्कर्म शिकार होई गुरुतर आहत होइथिले। घटनार 15 दिन पर 29 सेप्टेम्बर दिन दिल्ली रे सफदरजंग डाक्तरखाना रे अवस्था तांकर मृत्यु घटिथिला। तेबे 29 सेप्टेम्बर विलंबित राति रे ही उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार लोकंक बिना अनुमति रे पीड़ितांक अंतिम संस्कार करि दैथिला। एहाको नै हंगामा आरंभ होइथिला। नंबर 25 देश रे आसंता 3 वर्ष मध्य बढ़िबो कर्कट रोगींक संख्या। देश में आसंता 3 वर्ष मध्य कर्कट रोगी संख्या द्रुत गति में वृद्धि पाइब। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बा आईसीएमआर पक्षरु एही दाबी कर जाइछि। 2025 सुधा कर्कट रोगी संख्या 12.7% वृद्धि हेबो बोली आईसीएमआर पूर्वानुमान करिछि। गत किछि वर्ष मध्य भारत में कर्कट रोगी संख्या द्रुत गति में वृद्धि पाइछि। कर्कट रोगी परिसंख्यान को दृष्टि में रखी विशेषज्ञ माने एबे दाबी करिसंति। आईसीएमआर अनुसार 2020 राज्य तथा केन्द्रशासित अंचल में आनुमानिक कर्कट रोगी संख्या 13.92 लक्ष थिबा बेले 2021 रे यह 14.26 लक्ष को वृद्धि पाइथिला। 2022 रे यह 14.61 लक्ष को वृद्धि पाइथिबा बेले आगामी वर्ष रे एही संख्या आहुरी वृद्धि पाइबो बोली कह जाउछि। नंबर 26 दिल्ली अबकारी नीति आउ जनको बांधिला ईडी। दिल्लीर तथाकथित अबकारी नीति दुर्नीति घटना रे केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी रो धरपकड़ जारी रहिछि। एही क्रम रे काली ईडी एही घटना रे व्यवसायी अमनदीप धल्लन को गिरफ्त करिछि। रविवार सीबीआई तत्कालीन दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्त करिथिला। एही घटना को नै होइचई जारी रहिथिबा बेले ईडी पक्षरु एबे मनदीप को गिरफ्त कर जाइथिबा जणा पड़िछि। दिल्ली अबकारी नीति संपर्क में अमनदीप को गतकाली ठारु ईडी जेरा करुथिला। दीर्घ घंटार जेरा परे तांको विधिवत भावे गिरफ्त कर जाइछि। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अनुसार ईडी तांको विरोध में मामला करिथिला। तदंत बेले अनेक किछि प्रमाण तांको विरोध में मिलिथिबारु तांको गिरफ्त कर जाइथिबा जणा पड़िछि। नंबर 27 गिरफ्त पर जामिन रे मुकुड़िले बागेश्वर धाम मुख्यंक भाई।
मध्यप्रदेश पुलिस बागेश्वर धामर मुख्य तथा आत्मघोषित बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्त करिछि। गोटे बाहागर कार्यक्रम में शालिग्राम जड़े व्यक्ति को धमक देवा सह बंदूक देखि भयभीत करथिले। तेणु गुरुवार पुलिस तांको गिरफ्त करिथिला। तेबे गिरफ्त हेबार किछि समय मध्य से जामिन रे मुकुड़िछंती। गर्ग और तांको सहयोगी राजाराम तिवारी को काली छतरपुर पुलिस गिरफ्त करिथिला। एपरे उभय को स्थानीय कोर्ट रे हाजर करा जायथिला। कोर्ट रे उभय 25,000 टंका लेखाएं बेल बॉन्ड दाखल करी जामिन पाइछंती। नंबर 28 विपर्जय सृष्टि कले लायन। ऑस्ट्रेलिया को मात्र 76 रन टार्गेट देला भारत। प्रथम इनिंग्स परी द्वितीय इनिंग्स रे मध्य ऑस्ट्रेलिया स्पिन जाल रे फसी जाइछंती भारतीय बैटर। तृतीय टेस्टर प्रथम इनिंग्स रे मात्र 109 रन करी बैकफुट को ठेली हो जाइथिबा रोहित सेना को एबे मैच बंचेबा चिंता घारिछि। प्रथम इनिंग्स रे ऑस्ट्रेलिया 88 रन करी लीड हासिल करिथिला। एबे भारत तार द्वितीय इनिंग्स रे मात्र 163 रन करी ऑल आउट हो जाइछि। तेणु बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज रो तृतीय टेस्ट को जीतिबा पई भ्रमणकारी कंगारू टीम को केवल 76 रन रो टार्गेट मिलिछि। ऑस्ट्रेलिया पक्षरु अभिज्ञ स्पिनर नाथन लायन चमत्कार बोलिंग करने सह एकोटिया भारतर 8 जन बैटरों को आउट करिसेंती। मिचेल स्टार्क और मैथ्यू क्नेमैन गोटे लेखाएं सफलता पाइछंती। भारत ऑल आउट हेबा परे द्वितीय दिनर खेल शेष होईछि। नंबर 29 WPL रो ऑफिशियल मास्कट उन्मोचित। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेटर उद्घाटनी संस्करण मार्च 4 आरंभ हेबो। एथिने बीसीसीआई और ओमेन प्रीमियर लीग आयोजक कमिटी पक्षरु समस्त प्रस्तुति शेष होईछि। गुरुवार बीसीसीआई सेक्रेटरी जयसा यार ऑफिशियल मास्कट उन्मोचन करिसेंती। यार नाम शक्ति रखा जाइछि। मास्कट रे गोटे बाघ नील रंगर जर्सी पिंधिछि। बीसीसीआई टूर्नामेंट रो आंथेम मध्य रिलीज करिछि। जो महिला खेलाड़ी माने समस्त प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे क्रिकेटर नाम बढ़ाइछंती सेमानक प्रति एहाकु उत्सर्ग करा जाइछि। हरमनप्रीत कौर नेतृत्वाधीन मुंबई इंडियंस उद्घाटनी मैच रे गुजरात जायंट्स को भेटिबो। बेथ मुनी गुजरात रो नेतृत्व नेबे। देश विदेशर प्रतिष्ठित खेलाड़ी को नहीं यह आयोजित होथिबारु दर्शक माने बेस रोमांचभरा मुकाबिला देखिबाकू पाइबे। आईपीएल परी यह लोकप्रिय हेबा बोली साहा कहिसंती। नंबर 30 इंडियन ओपन थ्रो चैंपियनशिप ओडिशार किशोरों को स्वर्ण। कर्नाटकर बेलारी रे चलिथिबा इंडियन ओपन थ्रो चैंपियनशिप रे ओडिशा प्रतियोगी भल प्रदर्शन करिसंती। 27 वर्षीय किशोर कुमार जेना 78.93 मीटर दूरता को जाभेलिन फिंगी स्वर्ण पदक हासिल करिसंती। यह तांको सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन। दिल्लीर सरबजीत सिंह और अभिषेक ड्रोल यथाक्रमे रौप्य ब्रोंज पदक हासिल करिसंती। महिलांक लंग जंप रे ओडिशार मनीषा मेरेल रौप्य पदक जीतिछंती। से 5.96 मीटर दूरता को जंप करथिले। केरळर श्रुति लक्ष्मी एल एही विभागर स्वर्ण पदक हासिल करिसंती। मनीषा ओडिशा रिलायंस फाउंडेशन एचपीसी रे प्रशिक्षण नेउछंती। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।